Let's start off with Sushma Vyayam. Let's sit with our feet in front of us and start moving our toes. Few times. Now we'll move our entire feet. किला आवाज बहुत कम है बहुत कम है. ये Is it अरुण too मेरे को less कम now? सुन रही है नहीं कम ही आवाज अब आवाज आ नहीं रही आ नहीं रही है. अच्छा, एक मिनट. Few times. Now folding it from our knees, let's try and straighten it a few times. 5 times. From the left side. Let's draw circles with our toes, keeping our knees straight. Clockwise and then reverse. Left leg. Five. Now extending the feet to the side. So first I'll go to the right. Try and take it as far as possible. Getting a stretch on our inner thighs. 5 times. Using our two feet a little distance apart. And let's first get our right knee to the mat. Left knee is up straight. Feeling the stretch to the side. Here, you can give it a little tap if you want to, just to activate that muscle. Now the left side. Quickly doing a couple of times. Now holding both our feet together. Let's try and tap the knees to the ground. Now let's fold our right leg and place it on the left thigh and try and push the knee to the ground again as we're breathing out. As we're breathing in, try and get it closer to our chest. Once again. Okay. Now holding it like this, like as though you're cradling a baby. Try and get it as close to the chest as possible. Okay. Now holding the big toe, let's try and draw circles. Straightening the knee as it goes in front. Let's do this 5 times and then reverse 5. 5. Now holding on to the big toe, let's try and lift it as high up as possible. Trying to get a stretch on the outside of our thighs now. We can hold on to our ankles if need be, but keeping our knees straight.
and relax. Now we'll do this with the left leg. First placing it on the right thigh. Pressing it to the mat. Getting it close to the chest. We'll repeat it once more. Cradling the feet. Holding the big toe. Do 5 circles clockwise and 5 in the reverse direction. Right. Holding on to the big toe, try and lift it as high as possible. Just trying to get a stretch. Okay. Now sitting comfortable position, Padmasana, Ardha Padmasana if possible. Just do the side twist. So left hand on the right leg and turn to the right, twisting the back. Opposite side. Clasping our two hands, interlacing our fingers, lifting it above our head, stretch. Deep breath in, and as you breathe out, we'll try and place our forehead on the mat, front of us. Relax. Now we'll do the side bends, placing our elbow, right elbow on the mat. Try and get the left hand parallel to the mat. तेरे छोड़ा राज्य लगता है आपका ऑडियो ऑन है. सॉरी Yeah, on this other side now. So left elbow on the mat. ऑडियो इनका ऑफ नहीं है, प्रॉब्लम है इनके आज माइक्रोफोन में, आवाज बहुत धीमी आ रही है. अच्छा. अपना वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा भाई साहब. अभी भी बहुत धीमी है. मैंने सही आ रही, सही आ रही, सही बेटर है. इट्स बेटर नाउ. Oh, is it okay? Okay. Okay. So एक्चुअली दूर में जब जाते हैं तब इनकी आवाज कम हो जाती है. सभी अपने अपने वॉल्यूम मैक्सिमम कर लें, अपने अपने वॉल्यूम, तो आवाज आ जाएगी. कल रोटी नहीं खाई थी क्या अखिला? अरे ये अपना अपना माइक्रोफोन बड़ा ले. अखिला इट्स ओके. थोड़ा पास में यही कर दो अगर, तो दैट्स बेटर. जो पीछे वाले हैं वो पीछे कर दें. अच्छा. Okay. Fine. Okay. So okay. So let's do a little shoulder stretch, placing our hands on the shoulders. Let's draw in circles 5 times and then reverse. 5. Okay. Now quickly we'll do for our neck. So trying and touching the right ear to our right shoulder. The left hand side.
Abhi aage, let's try and touch the chin to the chest and behind. So let's draw a complete circle now with our head 2 times clockwise and 2 times the opposite direction. Okay. Let's say Om 3 times, and then we'll say the Gayatri Mantra for carrying forward. So taking a deep breath in. Om Bhurbhuvaswah Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Okay. So let's quickly straighten our feet and shake our legs a little bit. You feel any stiffness. So once this is done, let's try and sit in the Uktu position. You know what we do for Malasana. You can try and sit in this position for a few seconds before standing up. Just trying to feel comfortable, trying to get our feet as close together as possible. It's a bit uncomfortable to try and lose balance, but trying to get that balance here. And slowly we'll try and stand up. Yeah. Okay. So let's quickly do a little bit of warm up, the jogging warm up. So we'll do the little yogic jog. Let's do 1 minute of this. Just a few more seconds. Okay. So let's start off with Trikonasana. So what we'll do is we'll spread our feet a couple of feet away, and both feet are facing forward. So here now, as we breathe in, let's try and lift our left hand. Slowly breathing in. And as we breathe out now, we're going to bend towards our right hand side and try and touch our right fingers to the mat or the right ankle as we breathe out, going slowly. And keeping our left hand parallel to the mat. We just stay here for a few seconds, feeling the stretch on the left side of the body. Now on our next breath, breathe in. We're going to slowly come back. And as we breathe out,
take our left hand back to the side, back down. Let's repeat this on the right now. So as we breathe in, our right hand comes up now. As we breathe out, we try and bend to the left. Right hand parallel to the mat, left hand on the ground or touching the left ankle. Couple of breaths here. Now again, as we breathe in, we stand up slowly. And as we breathe out, right hand by the side. Now keeping our legs the same position, we'll try and do the opposite side toe touch. So first, I'll touch the left leg with my right hand. Now this time, I'm going to slowly walk my hands from the left to the right. And both my hands are now going to touch the right feet. Again, I'll do the walk back. I'm going to touch my left feet. अखिला अखिला हिंदी में बोलो, अंग्रेजी वाला कोई नहीं है यहाँ पे। अच्छा, जी जी। तो आज मैं बस ऑपोजिट साइड टो टच कर रही हूँ, लेकिन दोनों हाथों से, ताकि हमको ऑपोजिट साइड एक स्ट्रेच फील हो। तो दोनों हाथ अब लेफ्ट साइड है, तो मैं अब स्लोली अपने हाथों को ऐसे चलाते हुए राइट साइड की ओर आ रही हूँ, और राइट साइड दोनों हाथ मेरे राइट लेग को टच कर रहे हैं। तो आपको एक अच्छी स्ट्रेच आ रही है अपने वेस्ट में। एक दो बार ऐसे हम करेंगे, एक और बार करेंगे। अब हम बीच में रुकते हुए अपने पैरों को थोड़ी सी और स्प्रेड करते हैं, और यहाँ हम अपने सर को मैट पे रखने की कोशिश करते हैं। जितना नजदीक ला सके आप लाइए, और फिर अपने सर को ऐसे बीच में मैट पे रखने की कोशिश करेंगे। एक दो सांस लेंगे यहाँ पे, डीप ब्रेथ्स, और अगली सांस लेते हुए हम अपने सर को उठाएंगे, दोनों पैरों को नजदीक लाएंगे और धीरे धीरे से उठेंगे। तो आज हम करेंगे सूर्य नमस्कार थोड़ी धीमी गति में, क्योंकि हम एक राउंड नॉर्मल सूर्य नमस्कार करेंगे, उसके बाद दूसरी वाली थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करेंगे। तो शुरू करते हैं पहली राउंड। हर स्थिति में हम 5 सेकेंड्स रुकेंगे। तो शुरू करने से पहले एक बार बोलेंगे ओम सूर्याय नमः। दोनों हाथों को अपने सर के ऊपर आसमान की ओर खींचते हुए सांस लीजिए और सांस निकालिए। अब एक और बार सांस लेते हुए हम पीछे की ओर झुकेंगे। तो सांस लीजिए और सांस निकालते हुए हम पादहस्तासन में आएंगे। दोनों हाथ पैर के बगल में, यहाँ हम अपने एंकल को पकड़ते हुए थोड़ी सी और स्ट्रेच कर सकते हैं। घुटने सीधे यहाँ पे। अब सांस लेते हुए हम अपनी राइट लेग को पीछे लेके जाएंगे।
सांस निकालते हुए लेफ्ट लेग भी पीछे, पर्वतासन। अपने एड़ी को मैट पे लगाने की कोशिश। सांस लेते हुए हम दंडासन में आएंगे। सांस निकालते हुए अपने दोनों घुटने, छाती और चिन सब मैट पर, अष्टांगासन। सांस भरते हुए भुजंगासन। सांस निकालते हुए पर्वतासन। सांस लेते हुए राइट लेग आगे। नेक्स्ट पादहस्तासन, लेफ्ट लेग आगे। अब उठते हुए हस्तोत्तानासन। और नमस्कार की स्थिति। तब यही हम रिपीट करेंगे इसी पेस में लेफ्ट साइड की ओर। शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 लेफ्ट लेग आगे। 9 10 11 और 12। तो अब हम एक और बात करेंगे और इसमें हम थोड़ी सी वेरिएशंस लाएंगे। तो शुरू करते हैं। हस्तोत्तानासन 1 तो यहाँ फर्स्ट वेरिएशन के लिए हम सांस लेते हुए उत्कट आसन या चेयर पोज में आएंगे। तो चेयर पोज के लिए हम दोनों घुटनों को मोड़ते हुए ऐसी स्थिति में चेयर पोज में 1 या 2 सांस लेंगे। 5 सेकेंड्स में हम रुकते हुए। और अगली सांस लेंगे और निकालते हुए हम
पाद हस्तासन में आएंगे। अब राइट लेग पीछे जाएगा अश्व संचालन के लिए, या हम दूसरी वेरिएशन लाएंगे। तो दूसरी वेरिएशन के लिए हम अपने राइट हैंड को मैट पे रखते हुए लेफ्ट हैंड को आसमान की ओर लेके जाएंगे। साइड स्ट्रेच, एक्सटेंडेड साइड स्ट्रेच। और रिलैक्स करते हुए आप वापस। अब पर्वतासन के लिए हम अपनी लेफ्ट लेग को भी पीछे लेके जाएंगे। दंडासन, सांस लेते हुए अष्टांग आसन, भुजंगासन, सांस लेते हुए सांस भरते हुए, सांस निकालते हुए पर्वतासन। यहाँ हम इंट्रोड्यूस करेंगे हमारी तीसरी वेरिएशन। तो इसके लिए सांस लेते हुए हम अपनी राइट लेग को ऊपर की ओर लेके जाएंगे, 3 लेगेड डॉग पोजीशन। इस स्थिति को होल्ड करते हुए 3, 2, 1। अब सांस निकालते हुए हम अपनी पैर को नीचे लेके जाएंगे। रिलैक्स कीजिए। अब यहाँ पे हम सांस लेते हुए राइट लेग को आगे लेके आएंगे। अब यहाँ पे हम अपनी फोर्थ वेरिएशन ला सकते हैं। दोनों हाथों को साथ में लाना है, यानी कि मेरी राइट हैंड भी अंदर अंदर की तरफ है और राइट लेग बाहर है। तो यहाँ से मैं एक स्ट्रेच करते हुए मैं अपने दोनों कोहनियों को मैट पे लाने की कोशिश करूंगी। ये एक एक्सट्रीम स्ट्रेच इनर थाइस के लिए, राइट साइड इनर थाई। आप अगर चाहे तो यहीं पे इस स्थिति में भी रुक सकते हैं। तो रिलैक्स करते हुए मैं अपने राइट हैंड को बाहर की ओर लेके जाती हूँ और सांस निकालते हुए मैं अपनी लेफ्ट लेग को आगे लाती हूँ। उठते हुए हस्तोत्तानासन और रिलैक्स। अब यही हम रिपीट करेंगे लेफ्ट साइड की ओर। तो शुरू करते हैं। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट करते हुए उत्कटासन, चेयर पोज। दो सांस लेंगे और तीसरी सांस निकालते हुए हम पाद हस्तासन में आएंगे। वहां मेरी लेफ्ट लेग पीछे जाएगी, अश्व संचालन। सांस लीजिए और सांस निकालते हुए हम अपनी राइट हैंड को ऊपर की ओर लेके जाएंगे। ऊपर की ओर देखते हुए अपने राइट पाम को वापस आना है। अपनी राइट लेग को पीछे, प्लैंक पोजीशन, दंडासन। अष्टांग आसन।
भुजंगासन। पद्मासन। तो यहाँ पे सांस लेते हुए हम अपनी लेफ्ट लेग को ऊपर की ओर लेके जाएंगे। रिलैक्स करते हुए वापस आइए। अब हमारी लेफ्ट लेग आगे आएगी। अब मैं अपने लेफ्ट हैंड को अंदर की ओर लाऊंगी और यहाँ पे हम दोनों कूनियों को मैट पे लगाने की कोशिश करेंगे। रिलैक्स करते हुए अपने राइट लेग को आगे और नमस्कार। अब हम रिलैक्स करेंगे अपने मैट पर पीठ के बल। दोनों पैरों को थोड़ी सी डिस्टेंस में रखते हुए, दोनों हाथों को भी बॉडी से थोड़ी सी डिस्टेंस में रखते हुए हथेलियां ओपन आसमान की ओर। लंबी सांस लेंगे। यहाँ पे अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल लाने की कोशिश करेंगे। तो अब हम करेंगे मकर आसन की पहली विधि। तो दोनों पैरों को एड़ी को अपने हिप्स के पास लाते हुए पहले हम राइट साइड की ओर टर्न करेंगे। तो राइट साइड की ओर दोनों पैर को टर्न करना है और लेफ्ट साइड की ओर देखना है, लेफ्ट हैंड को देखना है। रिलैक्स करते हुए स्ट्रेट। अब लेफ्ट की ओर तो घुटने के ऊपर घुटना और एड़ी के ऊपर एड़ी रखते हुए और अब रिलैक्स। अब इसके बाद हम करेंगे नावासन और आज हम रुकेंगे विपरीत करने में। तो नावासन के लिए पहले थोड़ी प्रिपरेशन। दोनों हाथों को अपने सर के ऊपर लेते हुए यहाँ पे स्ट्रेच करेंगे दोनों हाथों को और दोनों पैरों को भी स्ट्रेच करेंगे। पूरी बॉडी एक स्ट्रेस या एक स्ट्रेन जैसी एक फीलिंग। यहाँ पे तीनों बंद, मूल बंद, उदान बंद और जालंधर बंद रखते हुए अब रिलैक्स करेंगे। एक और बार करेंगे। पूरी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। रिलैक्स कीजिए। अब हम पहले अपने फीट को अपने सर के पास लाएंगे, फिर अपने हाथों को पश्चिमोत्तानासन में लेके जाना है। तो ये हम 3-4 बार करेंगे, उसके बाद हम विपरीत करने में रुकेंगे। शुरू करते हैं।
अराउंड 30 सेकेंड्स यहाँ पे रुकते हुए, इसके बाद जब हमको वापस आना है तो हम हालासन में जाते हुए अपने पैरों को जितने सॉफ्टली मैट पे ला सकते हैं हम लाएंगे। तो इसका उपासन के लिए आज हम कंधार आसन करेंगे। तो कंधार आसन के लिए दोनों पैर वापस अपने हिप के पास, एडी अपने हिप के पास लाना है। अपने एंकल को पकड़ते हुए सांस लेते हुए हमें अपनी बॉडी को उठाना है, जैसे कि अपनी दोनों जंघा मैट से पैरेलल आ जाए। तो शुरू करते हैं। मिनिमम 30 सेकेंड्स यहाँ पे रुकेंगे हम। और ब्रीद आउट करते हुए हम अपनी बैक को वापस मैट पे लाएंगे। तो इसके बाद आज हम अपने फीट को 90 डिग्रीज में रखेंगे। इसको अर्ध हालासन जो बोलते हैं। तो इस स्थिति में हमको एटलीस्ट 1 मिनट आज रुकेंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप अपनी फीट को सपोर्ट करने के लिए ऐसे पकड़ भी सकते हैं या अपने टोज को भी पकड़ सकते हैं। तो इस स्थिति में हम 1 मिनट रुकेंगे। धीरे से अपने लेग्स को वापस मैट पे लाइए। अब हम दाहिने करवट से लेते हुए हम अपनी पेट के बल आएंगे। यहाँ पे हम धनुरासन करेंगे आज। तो धनुरासन के लिए अपने दोनों पैरों को ऐसे उठाएंगे, एंकल को पकड़ते हुए सांस लेते हुए हम अपनी अपर बॉडी और लेग्स दोनों को उठाना है। सेकेंड्स हम यहीं पे रुकेंगे आज। घुटना और उठाओ, घुटना कोशिश करो ज्यादा उठे। छाती ज्यादा उठ जाती है तो घुटना उठ ही नहीं पाता। अपना फोटो देखो। रिलैक्स करते हुए तो आज अब हम वज्रासन में आएंगे। वज्रासन में आज पहले हम मंडूकासन से शुरू करते हैं। तो मंडूकासन के लिए दोनों हाथों को ऐसे मुट्ठी बनाते हुए अपने नेवल के नीचे, नाभि के नीचे रखते हुए जितना नजदीक हो सके सांस लीजिए। सांस निकालते हुए हम आगे की ओर झुकेंगे। यहाँ पे हम
कपालभाति भी कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे और दूसरी विधि के लिए हम बस एक मुट्ठी अपनी नाभि पे ऊपर रखेंगे और लेफ्ट हैंड से उसको कवर करते हुए यही रिपीट करेंगे। रिलैक्स कीजिए। और तीसरी विधि के लिए हम मुट्ठी बनाएंगे, ऐसे अपने दोनों हाथों से कटोरी बनाएंगे। नाभि के ऊपर रखते हुए जब हम नीचे जाएंगे तो हमें इसे ऐसे हिलाना है। और रिलैक्स कीजिए। अब हम इसका उपासन करते हैं। सुप्त वज्रासन करेंगे। तो सुप्त वज्रासन के लिए हम दोनों वज्रासन में बैठते हैं। पहले दोनों पैरों को थोड़ी सी स्प्रेड करते हैं, ऐसे बीच में बैठ जाएंगे और अपने कोहनी के सहारे हम पीछे की ओर झुकेंगे और पहले हम अपने सिर को रखेंगे मैट पे और धीरे धीरे अपने शोल्डर्स को भी रखेंगे। यहाँ पे भी हम कपालभाति कर सकते हैं 30 टाइम्स 30 सेकंड्स के लिए। सावधानी क्या रखना है कि घुटने मेरे खुलने न पाए, उठने न पाए। अगर ऐसा हो रहा है तो सिर ही रखें, कंधे को ना रखें। कोई बात नहीं, जो स्थिति बनती है ना गोपाल जी, मेरा ख्याल गोपाल जी, जो स्थिति बनती है उसमें रुक जाओ, कोई जरूरी नहीं है। हाँ, आप एल्बोज लगा के रखिए, बस ऐसे होल्ड करिए। इट्स वेरी गुड। मत जाओ नीचे, धीरे धीरे आप अपने आप नीचे चले जाओ। तो वापस आने के लिए यही स्टेप्स रिपीट करते हैं। पहले हम अपने सर को रखते हैं सपोर्ट के लिए, अपने कोहनी के सहारे वापस आएंगे। तो अब हम करेंगे वक्रासन। तो वक्रासन के लिए हम पहले दोनों पैरों को ऐसे आगे रखते हुए राइट लेग को फोल्ड करेंगे पहले और लेफ्ट साइड की ओर ले जाएंगे। मंजू, अपना वीडियो खोलो तो मैं देखूं कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, बहुत जरूरी है। जो पैर ऊपर है वही हाथ पीछे जाएगा और दूसरी हाथ को हम अपने खड़े हुए पैर और छाती के बीच में लाते हुए ट्विस्ट करते मंजू, हैं। आप सुन नहीं रहे हो मेरा नाम है, मेरी आवाज? अगर आपने सही नहीं कर पा रहे हो तो फायदा नहीं है ना। देखो इन्हों कैसे कर रहे हैं। वीडियो हमेशा खोल के रखना चाहिए ताकि आपको देख के बताया जा सके कि आप गलत कर रहे हो सही कर रहे हो। नहीं, आप सही नहीं कर रहे हो मिस्टर गोविंद, क्या नाम था? हाँ, उल्टा। जो घुटना ऊपर है वो हाथ पीछे ले जाओ। जो घुटना ऊपर है वो हाथ पीछे। हाँ,
अब इसको ऐसे ही करो, छाती के बीच में रखो और घुटने के बीच में फिर पैर पकड़ो, राइट, दिस इज द वे। ट्राई करो, हाँ, पकड़ लो अपने नीज को। देखा आपने सभी ने? देखिए, अगर आप वीडियो खोल के रखेंगे तो हम आपको बता सकते हैं ना कि आप गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं, अदरवाइज क्या फायदा अपना टाइम वेस्ट करने का है। दूसरी लेग के लिए पहले हम अपनी लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे, राइट की ओर ले जाएंगे। लेफ्ट लेग ऊपर है तो लेफ्ट हैंड भी पीछे जाएगा और राइट हैंड को ट्विस्ट करते हुए थर्टी सेकेंड्स रुकेंगे हर पोजीशन में। एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट आसना। और रिलैक्स। इसके बाद हम करेंगे गोमुखासन। तो गोमुखासन के लिए हम अपनी लेफ्ट एड़ी पे बैठेंगे, एक एड़ी पे, और राइट लेग ऊपर आएगा। जो लेग ऊपर है उस वही हाथ ऊपर से बेंड होके आएगा और दूसरे हाथ को हमें अपने बैक के पीछे पकड़ना है। अब दूसरी ओर करेंगे, राइट एडी पर बैठते हुए। और रिलैक्स। अब हम करेंगे सिंहासन। तो सिंहासन के लिए हम अपनी ऐसे बैठे पद्मासन या अर्ध पद्मासन इसी स्थिति से करते हैं। दोनों हाथों को उंगली अंदर की तरफ ऐसे रखना है आगे, और यहाँ हम 10 टाइम्स रोरिंग साउंड करेंगे, 4 टाइम्स आगे और 3 टाइम्स साइड। शुरू करते हैं। अपने जीभ को बाहर निकाल के करना है। थोड़े से इसको मसाज कीजिए अपनी थ्रोट को। तो अब हम एक बार ओम की ध्वनि और प्राणायाम से शुरू करते हैं, कपालभाति से। लंबी सांस लीजिए। तो कपालभाति से शुरू करते हैं। कपालभाति में हमको अपनी स्ट्रेस जो है, हमारी फोकस जो है वो ब्रीद आउट में होना चाहिए। तो ब्रीद आउट में हमारे पेट को अंदर की ओर ऐसे खींचना है, फोर्स के साथ ब्रीद आउट करना है। ब्रीद इन अपने आप होती जाएगी।
ऐसे। तो इसको हम 4 मिनट्स करते हैं। तनु जी और अच्छा कर सकते हो आप, जल्दबाजी में नहीं है, इतना सांस निकालो कि पेट लगे के अंदर चला गया है। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा, और थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो मैक्सिमम। देखो आप जरा अखिला को, आप भी दुबले पतले हो, पेट कितना जा रहा है उसका अंदर। मंजू ने अभी नहीं खोला अपना, प्लीज मंजू जी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रोल कपालभाति का, अगर आप ठीक से मेरा नहीं कर पा रहे हो। मेरा अरुण जी वो खुल नहीं रहा है, मैं कोशिश कर रही हूँ, मेरा खुल नहीं रहा है। बताइए अखिला कैसे ये खोलेंगे। मैंने वीडियो? बहुत कोशिश करी है, वो बार बार कुछ ना कुछ उसमें आ रहा है। मैं अपने बेटे से पूछ के कल खोल के फिर मैं कल से शुरू कर लूंगी। हाँ नहीं, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आप योग के बारे में पता नहीं कितना जानते हो। बहुत हाँ कपालभाति में लोग अक्सर गलती करते हैं कि सांस जब निकले तो उसी समय पेट अंदर जाना चाहिए। हाँ जी, मैं ठीक कल है, से अपना वीडियो ऑन कर लूंगी। वन मोर मिनट, एक और मिनट यहाँ पे। इसके बाद हम करेंगे वायु कुंभक। अगर आपको प्रेशर की कोई इश्यूज है, बीपी की प्रॉब्लम है, तो आप इसे इसके बजाय आप अग्निसार शुरू कर सकते हैं। तो वायु कुंभक के लिए हम अपनी ब्रेथ आउट, ब्रीद आउट में हम अपनी ब्रेथ को होल्ड करेंगे। तो मिनिमम 30 सेकेंड्स से लेकर आपको जितना हो सके इसको इंक्रीज करना चाहिए। तो यहाँ से हम अब अग्निसार करते हैं 3 ब्रेथ्स के लिए।
तो ब्रीद आउट में हमें अपनी स्टमक एरिया की ऑर्गन्स को हिलाते हुए हम अपनी स्टमक को ऐसे हिलाना है। भारतीय योग संस्थान ने एक व्हाट्सएप ग्रुप खोला है, ऑस्ट्रेलियंस ग्रुप। तो मैं सारे जितने टीचर्स हैं उनका नंबर अगर उसमें ऐड कर दूं तो किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? हमारे ख्याल है सारे टीचर्स आए हुए हैं यहाँ पे। हाँ प्रमोद जी, सॉरी सीमान, यस। और कोई हाथ उठा दो अगर आप। Yes. हाँ यस, अखिला यस, अंजलि यस। अंजलि यस, और हाँ जी, हमारा भी यस। हाँ आपका तो हो गया होगा, शायद कर लिया हाँ जी, होगा हो उन्होंने। गया उसमें। हाँ जी, तो आप कर लीजिए ना, सभी टीचर्स को आप करिए ऐड। हाँ मैं कर या दूंगी। हाँ जी, हाँ, हाँ मैं कर अगर उन्होंने एडमिन अगर नहीं बनाया है तो आप उनको भेज नहीं, दीजिए कि प्लीज ऐड दिस नंबर। ठीक। अगर टीचर नहीं है तो तब भी ऐड कर सकते हैं आप? करने को कर सकते हैं, ऐसा तो कोई नहीं है, कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, हमारा भी कर दीजिए। तो जिसको भी करना है सीमा जी को बता दें, सीमा जी ऐड करवा देंगे। सीमा जी हमारा भी कर दीजिए। ठीक है जी। थैंक यू। इस समय अग्निसार चल रहा है और कौन कपालभाति कर रहा था? शायद मैं जी। आखिरी सांस अग्निसार की। इसके बाद हम करेंगे भस्त्रिका, सुदर्शन क्रिया वाली। इसके लिए मैं वज्रासन में बैठूंगी। तो आज हम 3 स्पीड में करेंगे भस्त्रिका, 30 टाइम्स ईच टाइम। दोनों हाथों को ऐसे मुट्ठी बनाते हुए अपनी बॉडी की साइड में रखते हुए सांस लेते हुए हमें हाथ को ऊपर लेना है, मुट्ठी को खोलना है और सांस निकालते हुए जर्क के साथ नीचे लाना है। तो शुरू करते हैं। पहली स्लो स्पीड। फ्यू सेकेंड्स रेस्ट के बाद हम दूसरी स्पीड करेंगे। शुरू करते हैं। तो आखिरी स्पीड में थोड़ी फास्ट जाएंगे। अगर कोई प्रेशर की इश्यूज है तो आप दूसरी स्पीड में ही कर सकते हैं रिपीट। शुरू करते हैं।
तो यहाँ हम शशकासन में बैठ सकते हैं फ्यू सेकंड्स, अपने दोनों पैरों को ऐसे स्प्रेड करते हुए अपने माथे को मैट पे लगाएंगे। तो अब हम करेंगे भस्त्रिका ब्रीदिंग नॉर्मल वाली। तो यहाँ पे हम 50 टाइम्स ईच नॉस्ट्रिल, फिर दोनों नॉस्ट्रिल से करते हैं। इक्वल एम्फेसिस ऑन ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। तो अपने हाथों से ऐसी एक मुद्रा बनाते हुए पहले हम राइट साइड से शुरू करते हैं, लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। तो अपने थंब से राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे और ब्रीद इन और ब्रीद आउट दोनों पर स्ट्रेस करते हुए 50 टाइम्स। अब हम ये रिपीट करेंगे राइट नॉस्ट्रिल से लेफ्ट को बंद करते हुए। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम, यानी कि ऑल्टरनेटिंग साइड्स। शुरू करते हैं, लेफ्ट से शुरू करते हैं और लेफ्ट से ही एंड करते हैं। लास्ट स्टेप, दोनों नॉस्ट्रिल्स से ब्रीद इन और ब्रीद आउट। इसमें थोड़ा सा अगर मैं बताऊं कि जैसे हम थ्रो कर रहे थे तब तो आवाज आ रही थी, जब इनहेल कर रहे थे तो क्यों आवाज नहीं आ रही थी? इसका मतलब इनहेलिंग में हम ज्यादा प्रेशर नहीं डाल रहे थे। अब जरा मेरी आवाज सुनिएगा। सुनिए आवाज, कुछ डिफरेंट थी।
ऐसे ही जब दोनों नाक से आप अनुलोम विलोम कर रहे थे तब देखिए, इसमें भी दोनों तरफ से आवाज आ रही थी, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही थी। तो ऐसे टाइम तो हमें नहीं मालूम कितना हो गया है, एक बार जरा 20-20 बार कर लीजिए सारे, अच्छा, दोनों तरफ से आवाज आएगी। हाँ तो हर हर स्टेट। हाँ, पहले अनुलोम विलोम। हाँ अच्छा, और फास्ट। हाँ चलिए, बस ज्यादा मत करिए, टाइम नहीं हो रहा होगा। फिर भी उतना प्रेशर नहीं डाला, बट टेक केयर। हाँ, अब दोनों नाक से। जल्दबाजी में हम क्या करते हैं कि हम ध्यान नहीं देते हैं, तो हम अच्छा करें पहले, उसके बाद स्पीड बढ़ाएं। नहीं, जी जी। तो अब हम भ्रमरी करते हैं। तो भ्रमरी 3 टाइम्स, अपने थम्स को कान के अंदर रखते हुए, बाकी उंगलियों से अपने फेस को कवर करते हुए एक बजिंग साउंड करना है। ब्रीद इन और ब्रीद आउट में बजिंग साउंड 3 टाइम्स करते हैं। अब हम 2 मिनट के लिए इसे मेडिटेटिव स्टेट में बैठेंगे, मेडिटेशन में। अब हम अपने आंखों को बंद रखते हुए एक बार ओम की ध्वनि
और फिर शांति पाठ करेंगे। ओम। ओम देव शांति अंतरिक्ष ग्वम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अब अपने दोनों हाथों को ऐसे रब कीजिए और गर्माहट को अपने फेस पे, अपने आंखों पर, फोरहेड पर, चीक्स पर लगाते हुए जब हम आँख खोलेंगे तो अपने हथेलियों को देखेंगे। थैंक यू ऑल।